फिर देखेंगे कि हमारा जो मूवमेंट है वो कैसे था। और Born ये out लाइनमैन of मत करें। sharing the same geographical territory, the same history and culture, and same aspiration to be independent of foreign domination. In India, this feeling arose among the people after the revolt of 1857, when people from different walks of life, belonging to different regions, rose against one common enemy. The second half of 19th century saw the growth of national political conscience in India. There were many factors that united Indians against foreign rule. The British ruled India administratively and politically by getting the country under their centralized control. Uniform laws were applied to everyone without any discrimination. Apart from uniform legal system, the postal system, common currency, railway and telegraph systems helped people to link with different parts of the country, thus bringing people closer to each other. Scholars and writers, through their writings and discoveries, made Indians proud of their glorious past. Some of the reformers inspired the Indians not only to discard outmoded customs and practices, but also to question the British authority. They also roused patriotic sentiments among the people. The press and the growth of nationalist literature spread modern ideas of nationalism, democracy, socialism, and internationalism. Besides this, the introduction of English language acted as a link between Indians from different regions of the country. Knowing this language helped Indians to communicate with each other. Britain was the emerging industrial giant in the 19th century, and the educated Indians thought that this progress would be reflected in India as well. The process of disillusionment started when the Indian intellectuals noticed that in all spheres the country was regressing. The start of deindustrialization, a gradual decline of Indian handicrafts, and interest of British in opening new industries was significant enough to anger and frustrate Indian expectations. India was turned into a mere supplier of raw materials and a market for British manufactured goods. Thus, India was becoming poorer day by day. During the British rule, Indians were often ill treated. They could not aspire to higher posts in administration. They were not allowed to travel in the same compartments of train with the British. Lord Lytton passed the Arms Act, which prohibited Indians from possessing arms without licenses. No such restriction was imposed on Europeans living in India. Moreover, Vernacular Press Act was passed, which restricted the newspaper published in vernacular languages in India. The recruitment age of Indians was reduced in Indian civil services. The introduction of Ilbert Bill meant that Indian judges could try people of the British nationality, unlike the earlier times when Indian magistrates could not judge cases involving British. Lord Ripon wanted to end unjust practices, but the British living in India protested against this bill. Ultimately, Ripon was forced to partially yield to their demands. According to a new rule, Europeans tried in a district magistrates court could ask for a jury, at least half of which could consist of Europeans. Lord Ripon was called back to England. The reaction of the British showed their attitude as one of racial superiority. Trivia: the Indian National Congress was formed by Britisher named A. O. Hume in 1885. Many Indian newspapers created awareness among the people about the anti-national policies of the British and spread the message of patriotism and national consciousness. They helped to form public opinion in India. Writing of some Indian as well as British scholars led to the rediscovery of India's glorious past, which helped to create a feeling of pride and respect for their own past. The birth of Indian National Congress. Before the establishment of Indian National Congress in 1885, there were quite हर्ष बाहर निकाल दो। हर्ष
आपको बाहर निकाल दो क्लास से। हर्ष, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। आपको मैं बाहर निकाल दूं क्लास से? मैंने आपसे पूछा है बेटा हर्ष, माइक ऑन करके जवाब दो। हर्ष, कैन यू हियर मी और नॉट? यदि दोबारा क्लास के बीच में से किसी हरकत की तो मैं उसको बाहर कर दूंगा बेटा। इट्स क्लियर? आपसे बोला 6 मिनट की वीडियो, आप इसको देखिए। Quite a few associations which had been set up to promote the interests of Indians. Some of these associations were British Indian Association, Madras Native Association, Bombay Presidency Association, Pune Sarvajanik Sabha, etc. However, these associations were limited both in membership, programs, and targets. Their memberships were limited to upper class educated Indians. They were also localized. A need was felt for an all India organization which would ideally involve the masses and would be more assertive in putting forward the demands of the people of India. Keeping this in mind, S.N. Banerjee started the All India National Conference at Calcutta in 1883. A second national conference was held in 1885. Same year, that is, in 1885, A.O. Hume, a retired British civil servant, along with some important Indian leaders, set up a political party, Indian National Congress. Their first meeting was held in Bombay, Mumbai, under Vomesh Chandra Banerjee. 72 delegates from all over the country attended the Congress. Since the All India National Conference and Indian National Congress upheld the same aim, it was decided to amalgamate the two into one single body, absorbing the conference into the Congress. The British felt that there should be an organization through which the Indians would be able to air their grievances. Under British supervision, this would act like a safety valve. This would enable the British to know the demands of the Indian people, and thus they would act accordingly. With this, they would be able to avoid a repeat of the revolt of 1857. The modern सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी। तो आपसे कहा कि सबसे पहले अब हम देखेंगे कि देखो, जब हम शुरू करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट की, तो सबसे पहला जो मूवमेंट था वो आता है कब? 1857। आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री। ओके सर। ठीक है, नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो आपसे कहा कि सही तौर पे हम लोग यदि पहली बार ब्रिटिशर से लड़े थे तो हम लोगों ने लड़ाई की थी फर्स्ट टाइम 1857 में, जब हम लोग एक तौर पर सबके साथ मिलकर लड़े, गवर्नमेंट के साथ मिले और हमने लड़ाई की। किसके लिए? फॉर द इंडिपेंडेंस। यस सर। ठीक, और वो तो हमारा मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम उस बैटल को हार गए थे। पर उसने अंग्रेजों को एक बात समझा दी थी, यदि हम इंडियंस मैटर में ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने 1857 के बाद, यानी कि 1858 से कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की। सबसे पहली पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। ठीक, यानी कि सबसे पहले उन्होंने आर्मी को ही डिवाइड किया।
आर्मी को डिवाइड कैसे किया? डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रीजन। यदि आर्मी में देखो तो आज भी आपको क्या होगा, अलग अलग रेजिमेंट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? अलग अलग रेजिमेंट्स मिलती है। जैसे सबसे यस पहले सर। एक जाट रेजिमेंट है ना, कुमाऊं है, यस सर। गढ़वाल है, इसी प्रकार मद्रास है, गोरखा। ये किस लिए बनाई, मतलब और एक्सेट्रास ये बनाई जिससे क्या कर सके वो लोग, लोगों को डिवाइड कर सके, लोग यूनाइट ना हो पाए। इसके साथ साथ बहुत सारे लीडर्स जो थे, जो इस समय पर भी कोशिश कर रहे थे कैसे ना कैसे करके कंट्री को फिर से ब्रिटिशर्स के साथ उनसे आज़ाद होने की कोशिश की जाए, जिसमें आपके बाल गंगाधर तिलक थे सबसे जब मेन नाम। ठीक, बाल गंगाधर तिलक थे। यदि आपसे बात की जाए बाल गंगाधर तिलक, ठीक, सबसे मेन वो थे। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं अब आ रही है? यस सर। डब्ल्यू सी Yes. बैनर्जी हो गए। ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी हो गए। ये वो लीडर्स थे, या सुरेंद्र नाथ एस एन बैनर्जी हो गए। क्योंकि देखो, बंगाल पे सबसे ज्यादा जो कब्जा था, सबसे पहले अंग्रेजों का सबसे पहले भी कंट्रोल हुआ था तो बंगाल पे ही हुआ था, है ना। तो ये वो लीडर्स थे जो आपसे कहा, डब्ल्यू सी बैनर्जी, इनको तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सर क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने इंडिया की जो वॉइस थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रेज की थी, और काफी एज थे। सर ये इंडियन थे या ब्रिटिशर्स थे? बेटा ये उस टाइम पर डब्ल्यू क्या कहते हैं, डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे वो इंडियन ही थे। लेकिन अंग्रेजों की अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कोई बाइफर्केशन नहीं किया था। किस चीज के साथ? कि भाई ये हमारी कॉलोनी का, उसने कहा यदि आदमी में कैपेसिटी है तो उसको काम करने दो, यदि जीत सकता है तो डेमोक्रेटिक वे पर उन्होंने उनको भी परमिशन दी। ठीक, इन्होंने इंडिया की जो वॉइस थी वहां की पार्लियामेंट में भी उठाई, और उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज को कंडेम्ड भी, ठीक है, कंडेम्ड भी किया। अब देखा जैसे जैसे, और इसी प्रकार से जो डिफरेंट रीजनल पार्टीज वो इंडिया में फॉर्म होने लगी थी। पार्टीज फॉर्म जैसे, ठीक, अब प्रार्थना सभा, ठीक, अलग अलग पार्टीज बनने लगी थी इस टाइम पर। अब जब ये पार्टीज बनने लगी और उन्होंने देखा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रिटिशर्स ने देखा रीजनल पार्टीज के बाद, जो उन्होंने कहा कोई ऐसा, अच्छा मुझे एक चीज बताओगे जब मैं आगे बढ़ूं, कि कुकर के अंदर एक सेफ्टी वॉल्व लगी होती है, उसका काम क्या होता है? कोई मुझे बताएगा सेफ्टी वॉल्व का काम क्या होता है? सर कुकर के अंदर। यदि आपने देखा हो, जैसे कुकर का ढक्कन है, जहां हैंडल लगा था उसके नीचे एक नट कसा हुआ होता है। सर मैं बताऊं। बोलो बोलो, कोई बोलो। सर जैसे कुकर के अंदर अगर प्रेशर बनता है तो फिर अगर सर अगर उसकी जो
विसा लेव सर वो अगर उठती नहीं है तो सर फिर वो जो वो सेफ्टी जो है वो निकल जाता है और गैस रिलीज हो जाती है, वरना कुकर फट जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कुकर फट जाएगा। तो ऐसा ही कुछ ब्रिटिशर्स को भी लगा था। यदि इंडियंस के अंदर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, यदि वो नहीं निकला तो फिर से रिवोल्ट हो सकता है ना? क्या हो सकता है? यस सर। रिवोल्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा हम ऐसा काम करते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते हैं। अब विरोध कौन कर रहा था? एजुकेटेड क्लास। कौन कर रहा था? एजुकेटेड एजुकेटेड पीपल्स। क्लास। ठीक। और ये लोग, उन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक ग्रुप बना देते हैं जहां पर साल में ये कुछ दिनों के लिए इकट्ठे हों, हमें गालियां दें या कहेंगे भाई आपकी बातों को मान लेंगे, और फिर जाकर ये पूरे साल, मान लो 10 दिन ऐसा ये सेशन हो, और बाद में 355 डेज दे इंगेज इन देयर वर्क्स। और ये सजेशन दिया था ए ओ ह्यूम ने। उसने कहा हम एक पार्टी बना देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की। ठीक है, क्या फॉर्म की? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की। और इसमें कौन थे? सारे जो लीडर्स थे। पहले इसका जो पहला सेशन था वो 1885 में, जो आज का मुंबई है, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक। और उसके बाद कंटिन्यूस ये चलता रहा। ऐसा नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ चेंज नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए। रिफॉर्म्स सिर्फ दिखाने के लिए थे। अब जैसे जो गवर्नर काउंसिल थी, ठीक, जिसका काम गवर्नर को एडवाइस करना था। एडवाइस होता है कि मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एडवाइस आप मान भी सकते हो और एडवाइस आप नहीं भी मान सकते। इतनी बात क्लियर? एडवाइस को मानना कोई कंपलसरी नहीं होता है, उसमें इंडियंस को इंक्लूड कर दिया गया। इंडियंस वर इंक्लूड। ब्रिटिशर्स ने काम तो बहुत सारे किए, मतलब ऐसे जिससे कि हमें भड़काए या हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करें, लेकिन कुछ काम गलती से अच्छे भी हो गए। वो था इंट्रोडक्शन ऑफ वन रूल। पूरी कंट्री अब ब्रिटिशर्स के अंदर थी। अब जो रेल आ गई, रेल से क्या था कि जो ट्रेवल था वो इजी हो गया, है ना? क्या हुआ? अब जो ट्रेवल था इट बिकम इजी। अब कोई आदमी नॉर्थ से साउथ इजीली जा सकता था। और आपको पता है कि साउथ से बहुत सारे पिलग्रिम्स नॉर्थ में आते। और नॉर्थ से भी बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो रामेश्वरम आते हैं। आते कि नहीं आते? यस सर। तो इस प्रकार से जब ये लोग आपस में मिले तो इन्हें पता चला अरे हमारे तो कल्चर भी एक है। दूसरी चीज, पहले क्या था, दूसरा जो मेल, यानी कि जो लेटर्स उन्होंने स्टार्ट किए, इससे जो इंफॉर्मेशन थी अब वो इजीली मूव होने लगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है बेटा, इजीली। उसके बाद ये चीजें लोगों को यूनाइट करने का काम किया। दूसरा साथ में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ने भी लोगों को यूनाइट करने का काम किया। बिकॉज जो राइटर्स थे, जो एडिटर्स थे, वो क्या करते थे? एडिटर्स एनालाइज द ब्रिटिश पॉलिसी। सर हम्म। सर जैसे आपने बताया कि ए ओ ह्यूम ने
मतलब जो पार्टी थी वो बनवाई थी। हाँ तो सर एवं तो सर ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो सर हाँ, उन्होंने इंडियंस की हेल्प क्यों करी पार्टी उन्होंने बनाने में? इंडियंस की हेल्प नहीं की बेटा। मैंने क्या कहा, गलती से हो गई। तो गलती से उन्होंने तो, कैसे मतलब? अब देखो, उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी, वो फॉर्म की थी जिससे कि लोग यहां पर आए, पीपल्स जो लीडर्स हैं कम, ठीक है, एंड डिलीवर डिलीवर देयर व्यूज एंड सजेशंस। जो भी लीडर्स और जो लोग वहां पर आए, वो क्या करें, अपने वहां पर अपने व्यूज और सजेशंस दें, ठीक, और फिर क्या कर जाए वो, दे स्टार्ट देयर ओन वर्किंग्स, फिर अपने काम में लग जाएं। अब यदि वो एक दिन आके सर या वहां पे एक, आ जाके अपनी अब मान लो, एक मिनट उज्जवल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, ठीक है, और आप मेरे को कुछ नहीं कर सकते हो, तब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालोगे? हाँ बेटा, यस सर, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जाते थे ना, मतलब बुलाया था ना उन्होंने। वो उन्होंने बनाया इसलिए था कि इंडियंस आए, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालें, और फिर पूरे टाइम पर अपने काम में लग जाएं, ठीक, और ताकि रिवॉल्ट भी ना हो। ताकि रिवोल्ट भी ना हो, और उनकी एक दो बात को मान लिया जाए, जिससे उन्हें भी लगे हाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और वो क्या हुआ, वो उनकी बातों को सुनती है और मानती भी है। सर यस सॉरी, सर। गलती से ना मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, वो हो जाते हैं बेटा कई बार, इसलिए मैं मीटिंग को ऑन रखता हूँ। कभी मैं ये नहीं करता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मीटिंग को मैं ऑफ कर दूं या क्लोज कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कई बार दिक्कतें आती हैं बेटा, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। और जो हम इंडियन हिस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पहला फेज है, हम उसको कई फेजों में डिवाइड करते हैं। एक आता है आफ्टर, ठीक है, 1858 टू 1885। दूसरा फेज आता है, वो आता है 1885 टू 1905। थर्ड फेज आता है 1905 टू 1947, यानी कि फ्रीडम तक। हमारी हमारी हिस्ट्री जो जो हम नेशनल मूवमेंट को पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री इन तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा। ये तीन पार्टों में क्यों डिवाइड होती है? उसका कारण है कि इस टाइम पर कई सारे काम हुए जिसने इंडियंस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट करने का काम किया। अब जैसे आपसे कहा, एक एल्बर्ट बिल आया था बेटा, उसके अकॉर्डिंग इंडियंस किसी भी यूरोपियंस के ट्रायल को नहीं सुन सकते थे, ठीक। लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन ने इस बिल को अपोज किया, और उन्होंने कहा नहीं, इंडियंस भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से और कई चीजें हुई, जैसे कि इस टाइम पर वो प्रेस बिल लेकर आए कि जिससे क्या कर सके, इंडियंस को कंट्रोल किया जा सके। फिर 1885 से लेकर जो 1905 का टाइम पीरियड है, इसको हम जो मानते हैं, मान के चलते हैं, वो हमारा आता है कि यहाँ पे जो कांग्रेस थी, जो मूवमेंट था, वो सिर्फ रिक्वेस्ट और सजेशन पे था। यानी कि कांग्रेस जो थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी, भाई आप ऐसा कर लो जिससे हम लोगों की बात सुनी जाए, कुछ सजेशन देती थी, मानना नहीं मानना। और यहां पर कांग्रेस जो थी, कांग्रेस लीडर जो थे, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक मॉडरेट और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। जिसको हिंदी में कहते हैं नरम दल, और दूसरे को गरम दल। जो नरम दल वाले थे, वो रिक्वेस्ट
कहते हैं हम ब्रिटिश है क्योंकि पावरफुल हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें और रिक्वेस्ट को वो मान लेंगे। गरम दल वाले कहते हैं नहीं, हमें अपोज करना चाहिए, वी हैव टू अपोज। और इन्होंने 1895 में जब फर्स्ट टाइम बंगाल का डिवीजन हुआ, ठीक, तो इन लोगों ने बंगाल डिवीजन को क्या किया था, अपोज किया था बाय बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स। ओके, और 1905 तक ये मूवमेंट ऐसे ही चलता है, और 1905 के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं। उसी का इम्पैक्ट होता है कि 1907 में आके कांग्रेस डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, एक जो मॉडरेट की कांग्रेस थी और दूसरी जो एक्सट्रीमिस्ट की कांग्रेस थी। और ये फेज चलता है 1907 से लेकर 1915 तक, यानी कि जब गांधी जी एंटर करते हैं, एंटर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। हाँ बोलो बेटा, बोलो। ठीक है, बाकी हम परसों की क्लास, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बाय। बाय सर। बाय बेटा।